Hello students, this is Chandana and I welcome you to Business Studies class. In this class, we are going to start with the second chapter. The first topic of our second chapter, that was departmental undertaking. This we have done in our Zoom class, right? Now our second topic is public corporation. Now as you all know that departmental undertaking was a public sector enterprise. Departmental undertaking क्या है? वो एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है. पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज मीन्स विच इज़ बीइंग ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट. ओनरशिप भी गवर्नमेंट के हाथ में है. इंटायर मैनेजमेंट वो भी गवर्नमेंट के हाथ में है. एंड द डिसीजन मेकिंग पावर, द कंट्रोल इज ऑल्सो इन हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट, राइट. द सेम वे public corporation, you can call it as public corporation, you can also call it as statutory corporation. These are also public sector enterprise. ये दोनों words same है. या तो आप public corporation बोलो और you can say statutory corporation. Okay, they are actually public sector enterprise. That means the ownership, control and management is in hands of government. Okay, now we'll start with the first point. It is a body corporate. Public corporation क्या होता है? It is a body corporate. Now what do you mean by body corporate? Body corporate means public corporation has legal existence. In eyes of law, it has legal existence, right? And ये public corporation कैसे बनाया गया है? It has been formed by passing a special act in parliament. Parliament में special act pass किया गया and then this public corporation has been formed. Now if I take the examples are LIC, Life Corporation of India. Then you have is Air India. So these are the examples of public corporation. तो ये कैसे बनाया गया है? पार्लियामेंट में स्पेशल एक्ट पास किया गया एंड उसके अकॉर्डिंगली पब्लिक कॉरपोरेशन इज़ फॉर्म्ड. नाउ इन द एक्ट whatever objectives are written, whatever powers are written, rules and regulations are written, those are followed by public corporation. इस एक्ट में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, जो पावर्स ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं, उसी के अकॉर्डिंग पब्लिक कॉरपोरेशन इज़ रन, राइट. तो कैसे बनाई गई है? बाय पासिंग अ स्पेशल एक्ट इन पार्लियामेंट एंड इट इज़ गवर्न्ड बाय दैट एक्ट. एक्ट में जो लिखा है उसी के अकॉर्डिंग पब्लिक कॉरपोरेशन इज़ रन. एंड द एग्जाम्पल्स विच वी हैव डन आर LIC, GIC, एयर इंडिया. ओके. Public corporation operates under the control of government. Now if you remember departmental undertaking, वहाँ पे क्या था? The entire control was under one ministry. एक जो ministry के अंडर वो डिपार्टमेंट आता है उसी के अकॉर्डिंगली सारा कंट्रोल होता है. लाइक रेलवेज़ किस मिनिस्टर के अंडर आता है? पीयूष गोयल के अंडर आता है. तो पीयूष गोयल ही सारे डिसीजन लेंगे रेलवेज से रिलेटेड, राइट. सो इट वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ वन मिनिस्ट्री. बट इन केस ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन द एंटायर कंट्रोल इज अंडर गवर्नमेंट ही सारे डिसीजन लेगी, राइट. वन मिनिस्ट्री विल नॉट टेक एनी डिसीजन बट इट विल बी द कलेक्टिव डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट. एंड यहाँ पे गवर्नमेंट सेंट्रल भी हो सकती है, स्टेट भी हो सकती है. ओके, नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट, it is separate legal entity. This I have told you just now also that it is a body corporate. Body corporate का क्या मतलब है? कि public corporation का एक अलग से legal existence है, right? इसका मतलब उसका खुद का एक legal existence है. That means उसकी identity separate है government से. It has separate legal entity. That means the identity of public corporation is separate from government. Okay, now here the management is in hands of board of directors appointed by government. Public corporation की जो activities हैं वो कौन मैनेज करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं. एंड ये बोर्ड
को कौन अपॉइंट करता है, इन डायरेक्टर्स को कौन रखता है, दे आर एक्चुअली बीइंग अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट. सो द कंट्रोल is in the hands of government, decision making power and everything is in hands of government, but management कौन सारी business activities manage करता है, board of directors, and who appoints them, government. Okay, now coming to this point, here the annual budget is not followed. Now if you remember departmental undertaking, हमने उसमें point ये किया था कि their annual budget is followed. जहाँ पे भी जो भी लिखा हुआ है बजट में that on this area this much amount has to be spent and on this area this much amount has to be spent, so accordingly we'll be spending the money. जैसा बजट में लिखा है that has to be followed. Like रेलवेज़ में जो भी खर्चा किया जाता है किसके अकॉर्डिंग किया जाता है, अकॉर्डिंग टू रेलवे बजट, राइट. वहाँ पे आप फिनेंशियल ऑटोनॉमी एब्सेंट थी, वहाँ पे फिनेंशियल फ्रीडम नहीं थी, आप अपने अकॉर्डिंग खर्चा नहीं कर सकते, यू हैव टू फॉलो द एनुअल बजट. बट हियर फिनेंशियल ऑटोनॉमी इज़ देयर बिकॉज एनुअल बजट इज़ नॉट फॉलोड. आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे खर्चा कर सकते हो. इंटायर फिनेंस, ये जो भी फंड्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं, गवर्नमेंट से आते हैं. So public corporation is fully financed. Public corporation is fully financed by government. But here the annual budget is not followed. तो यहाँ पे financial autonomy है, financial freedom है, आप अपने according खर्चा कर सकते हो. Okay. Appointment of staff as per their own rules. यहाँ पे आप जो भी employees को रखोगे वो कैसे रख सकते हो, अकॉर्डिंग टू द ओन रूल्स. पब्लिक कॉरपोरेशन के जो खुद के रूल्स हैं, जो रूल्स एक्ट में लिखे हैं रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट, किसी को रखना है उससे रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं एक्ट में, उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट कर सकते हो. दैट मीन्स अगर आपको डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग याद हो, उसमें हम कैसे अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, द एम्प्लॉयज़ विल हैव टू पास UPSC एग्ज़ाम, वो कंपलसरी होता है, पास करना पड़ेगा और फिर आप डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ज्वाइन कर सकते हो, राइट. बट हियर they don't need to pass that UPSC exam, no, they have their own rules and regulations which are mentioned in the act and accordingly that employee will be appointed. Okay, तो जो उनका खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग अपॉइंटमेंट होगा. नेक्स्ट पॉइंट इज enjoys एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी. यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी है. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी मीन्स द बिजनेस एक्टिविटीज़ कैन बी डन स्मूथली, फ्रीली, विदाउट मच इंटरफियरेंस. गवर्नमेंट का इतना इंटरफियरेंस नहीं है इन केस ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन. यहाँ पे रेड टेपिज्म भी कम है. ना व्हाट इज़ रेड टेपिज्म? रेड टेपिज्म इज़ टू मच पेपर वर्क इन्वॉल्व. बहुत सारा पेपर वर्क इन्वॉल्व होना, हर काम के लिए पहले डॉक्यूमेंट्स बनाना, बहुत पेपर वर्क करना, राइट. यहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं हैं. दैट मीन्स रेड टेपिज्म इज़ नॉट देयर in case of public corporation and bureaucracy is also not there. Now what is bureaucracy? Bureaucracy means rules and regulations, excessive rules and regulations. bureaucracy भी इतनी नहीं है और red tapeism भी इतना नहीं है. red tapeism I told you कि बहुत ज़्यादा पेपर वर्क, कि कोई भी डिसीजन लेना है तो हम पेपर वर्क बहुत इन्वॉल्व कर रहे हैं, पहले इतने सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं फिर जाके परमिशन मिलती है. ऐसा यहाँ पे नहीं है और इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस भी नहीं हैं. तो जो भी बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं, जो भी काम है वो फ्रीली स्मूथली हो जाता है. वाई? बिकॉज ये रूल्स रेगुलेशंस भी बहुत नहीं हैं और बहुत ज़्यादा पेपर वर्क भी नहीं है, राइट. सो हियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी इज़ देयर. अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट.
अकाउंटेबिलिटी मीन्स अकाउंटेबल होना, मीन्स आंसरेबल। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में भी क्या था, यू नीड टू गिव आंसर टू द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में प्रॉपर डिस्कशन होगा, आपने क्या काम किया, क्या नहीं किया, क्यों लॉस हुआ, क्यों प्रॉफिट हुआ, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट इन केस ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, यही बताया था मैंने। एंड हियर ऑल्सो पब्लिक कॉरपोरेशन कैसा कर रही है, प्रॉफिट में जा रही है, लॉस में जा रही है, सो every discussion will take place in parliament. That means public corporation is accountable to parliament. Parliament में उन्हें जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने काम कैसा किया। Okay, and most importantly here the motive is service motive. Motive is service motive, not earning profit. So these are the main points of public corporation. We'll just revise it once again. It is a body corporate. बॉडी कॉर्पोरेट मैंने बताया कि इसका एक लीगल खुद का एग्जिस्टेंस है। एंड ये कैसे बनाया गया है, बाय पासिंग अ स्पेशल एक्ट इन पार्लियामेंट। इफ़ यू टॉक अबाउट एग्जांपल्स, LIC, एयर इंडिया, GIC, दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स। यहाँ पे कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करे जाते हैं, क्या पावर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है, इट इज़ ऑल मेंशन्ड इन दैट एक्ट एंड दैट एक्ट इज़ फॉलोड। ओके, गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, दैट मीन्स इसकी आइडेंटिटी गवर्नमेंट से अलग है। मैनेजमेंट किसके हाथ में है, बिजनेस एक्टिविटीज़ के बारे में क्या करना है, कैसे करना है, वो सब कौन डिसाइड करता है, इट इज़ बीइंग डिसाइडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट। एंड हु अपॉइंट्स देम, गवर्नमेंट अपॉइंट्स देम। नाउ इफ यू टॉक अबाउट फंड्स, यहाँ पे एनुअल बजट इज़ नॉट फॉलोड, राइट। तो यहाँ पे फिनेंशियल ऑटोनॉमी है, यू कैन स्पेंड मनी एज यू लाइक, राइट। प्रॉपर बजट इज़ नॉट देयर कि इस बजट के अकॉर्डिंग चलना है, ऐसा नहीं होता है। एंड सारा पैसा कौन लगाता है, इट इज़ गवर्नमेंट हु फुली फाइनेंस पब्लिक कॉरपोरेशन। नाउ हाउ डू यू अपॉइंट स्टाफ, अपॉइंट पीपल, इट इज़ अकॉर्डिंग टू द देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस। यहाँ जो एक्ट में रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग आप उन्हें अपॉइंट कर सकते हो। नाउ हियर वी आर सेइंग दैट देयर इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, दैट मीन्स यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटीज़, जो भी एक्टिविटीज़ हैं पब्लिक कॉरपोरेशन की, स्मूथली हो जाती हैं, राइट। वाई, बिकॉज एज वी हैव टॉक्ड हियर दैट ब्यूरोक्रेसी कम है, रूल्स रेगुलेशंस कम है, एंड रेड टेपिज्म भी नहीं है इतना। रेड टेपिज्म मीन्स पेपर वर्क भी इतना इन्वॉल्व नहीं होता है। दैट इज़ वाई वी आर सेइंग दैट देयर इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट, उन्हें जवाब किसको देना पड़ता है, पार्लियामेंट को देना पड़ता है, रिलेटेड टू द वर्क दे आर डूइंग, ओके। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द मोटिव इज़ service motive, right. So these are the features of public corporation. Now we are going to do the merits and demerits of public corporation. Students, our next topic is merits of public corporation. We have done features of public corporation. Now we are going to do the merits. Merits means the advantages of public corporation. The first advantage is administrative autonomy. This point we have done in features also. वहाँ पे भी ये point किया था कि public corporation enjoys administrative autonomy. Now what is administrative autonomy? Autonomy meaning is freedom. Autonomy का क्या मतलब होता है? It is freedom. तो यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं, वो फ्रीली स्मूथली परफॉर्म होती हैं। क्यों होती हैं? आई हैड टोल्ड यू टू रीजन्स। वन इज़ रेड टेपिज्म यहाँ बहुत कम है, राइट। यहाँ पे पेपर वर्क बहुत कम इन्वॉल्व है, देयरफॉर ऑटोनॉमी रहती है। एंड सेकेंड रीज़न आई हैड टोल्ड यू दैट ब्यूरोक्रेसी इज़ ऑल्सो लेस, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस भी इतने नहीं हैं, एंड देयरफॉर ऑटोनॉमी रहती है, ओके। देयर इज़ वन मोर रीज़न दैट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, इट इज़ सेड, ऐसा बोला जाता है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी कम है। सो बिकॉज ऑफ रेड टेपिज्म, यहाँ पे रेड टेपिज्म इतना नहीं है। दूसरा, ब्यूरोक्रेसी कम है, रूल्स रेगुलेशंस कम है। एंड थर्ड इज़
that the political interference is also less, and therefore we say that यहाँ पे administrative autonomy है, आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो. Okay, now coming to the second advantage, quick decision. Here you can take quick decision. Decisions will not be delayed. The reason is here there is absence or there is lack of red tapeism. There is lack of red tapeism. अभी मैंने रेड टेपिज्म का मतलब बताया कि यहाँ पे इतना डॉक्यूमेंटेशन, पेपर वर्क इतना इन्वॉल्व नहीं रहता है. तो यहाँ पे क्या आप आराम से जल्दी डिसीजन ले सकते हो. वहीं सोचो बहुत पेपर वर्क इन्वॉल्व हो, कोई भी डिसीजन लेना हो तो आपको बहुत डॉक्यूमेंटेशन पूरे करने पड़े, तो डिसीजन हमेशा क्या हो जाएगा, डिलेड हो जाएगा. बिकॉज देयर इज़ लैक ऑफ रेड टेपिज्म, डिसीजन इज़ क्विक. Now coming to the third point, service motive. This also we have done that public corporation का क्या motive है, service, to serve the society, not for earning profit, right? And therefore public corporation works in the interest of public. Public के भले के लिए काम करते हैं. Okay, and therefore we say that the motive is to serve the society or service motive. Now coming to the fourth advantage, efficient staff. यहाँ जो भी staff रखे जाते हैं, it is said that they are efficient ones. Why? Because we are following the rules and regulations of the act to appoint the staff. जैसा उन्हें एम्प्लॉय चाहिए, जैसा स्टाफ चाहिए, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं एक्ट के, उसको फॉलो करके हम अपॉइंटमेंट कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ का. तो कैसे आप लोगों को रखोगे, एफिशिएंट को ही तो रखोगे. क्यों? क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको अच्छे लगते हैं या जिस तरह के आपको एम्प्लॉयज़ चाहिए, आप उस तरह के रख रहे हो. यू आर फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द एक्ट टू अपॉइंट एम्प्लॉयज़. सो ऑब्वियसली कैसा एम्प्लॉय रखोगे, एफिशिएंट. कमिंग टू द फिफ्थ एडवांटेज, प्रोफेशनल मैनेजमेंट. यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो पूरा मैनेजमेंट कौन करता है, वो पूरा मैनेज कौन करता है एक्टिविटीज़ को, प्रोफेशनल्स करते हैं. नाउ आई हैड टोल्ड यू कि मैनेजमेंट किसके हाथों में होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथों में है पूरा मैनेजमेंट. ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन अपॉइंट करता है, गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं. ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, they are professionals in their own field. सब प्रोफेशनल्स हैं, सब एक्सपर्ट्स को रखा जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, राइट. तो ऑब्वियसली वो वर्क को कैसे मैनेज करेंगे, प्रोफेशनली मैनेज करेंगे. दे विल बी मैनेजिंग द वर्क इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. क्यों? क्योंकि वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो खुद ही प्रोफेशनल्स हैं. दे आर एक्सपर्ट इन देयर ओन फील्ड. तो यहाँ पे पब्लिक कॉरपोरेशन का मैनेजमेंट कैसा होता है, प्रोफेशनली होता है. वाई? बिकॉज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर मैनेजिंग देम, एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद ही बहुत प्रोफेशनल है. ओके, सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ public corporation. Now I'll just repeat once again, here you have administrative autonomy, काम अच्छे से होता है. Why? क्योंकि इतने rules and regulations नहीं है, इतना पेपर वर्क डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व नहीं है, एंड गवर्नमेंट का इतना इंटरफेरेंस नहीं है. इंटरफेरेंस है बिकॉज इट इज़ द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, बट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इतना नहीं है, एंड देयरफॉर वी से दैट देयर इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी. सेकेंड, quick decision can be taken because there is lack of red tapeism. Here motive is service. They work in the best interest of public, right? Profit कमाना इनका मोटिव नहीं है. एफिशिएंट स्टाफ क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अपॉइंटमेंट करने के लिए हम रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं जो एक्ट में लिखे हुए हैं, राइट. फिफ्थ पॉइंट, प्रोफेशनल मैनेजमेंट. द मैनेजमेंट इज़ वेरी प्रोफेशनल. सारा काम एक्सपर्ट्स करते हैं. कौन करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, एंड वो एक्सपर्ट्स हैं अपनी फील्ड में. सो देयर इज़ प्रोफेशनल मैनेजमेंट.
So students, these are the merits of public corporation.